हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं एनसीईआरटी सीबीएसई के जो है कक्षा 11th की इतिहास, जो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है समय की शुरुआत से। ये इतिहास का चैप्टर है, यानी एनसीईआरटी जो है हम करेंगे सीबीएसई के क्लास 11 हिस्ट्री जो है फ्रॉम द बिगेनिंग ऑफ द टाइम। काफ़ी महत्वपूर्ण ये चैप्टर है और इसमें हम कुछ क्वेश्चनों को जो है हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यम में आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे और ये एग्ज़ाम व्यू से भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। यहाँ तक कि एग्जामिनर इससे अधिक कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा जो क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको पता है चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और इवन अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनएसएस सेंटर जो कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपान सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Today we discussion most important question here. Who were the first to use the tools? How these tools used by the early man were categorized? You know that is the most important question here. Who were the first to use the tools and how this tool used by the early man were categorized? This is the most important question for the exam view here. Australopithecus were the first to use tool. You know that the Australopithecus were the first to use the tools. About the 35 year ago, there is a 35 year ago, we come across the evidence of remarkable improvement in their method of hunting animals. Their method of hunting animals. It became clear from the event that is a special types of spear was used to the hunt of animals. This is important, but the most important, there is a tool used by the early man were characterized. Note that. Let's see characterize of the tools here. The use of early man here. The tool used by the early man can be characterized into three types. You know that there is three types. This is important. They are discussed under flowing heads. First of all here, hand axis. Hand axis is the most important here. There were used to be a punching. In the beginning, there is used without a handle, but later on the wooden handle was attached to it, and it was made to the possible to use them with a much force. The hand axis on this period time, the use of tools, there is the most important here. There is a handle, but is a later on the wooden handle used here and attached to it. It was made possible to use them without much force. And the next comes here a copper. They were made of the heavy stones. Work to be a sharp aid is one of direction only. And there is a most probably used to be chopping meat. There is copper used here a chopping of meats. That's important. They are made of heavy stone. And the work of sharp aid is one of direction only. And the next here, flag implements. The flag implement that were used to be is the knives and the scrapers. They are finer work. For 1,000 of years of mass of early the history of once remind that we have find our crude stone tools. This is a flag implement. That is the most important tools here.
These tools are often found lying along the traces of rivers or in their huts or caves where early man used to live and the roams in the search of wild animal. That's important. And this tool made by him serve many purpose, such as schemings of their dead animals and cutting their flesh, etc. The most important uses here on these tools. About 35 years ago, new kinds of tools used as a spear, thrower, and bow arrows come into the beginning. You know that is important here. There the tools are often found along the trace of rivers in there is a hearts, and they're made of several many purpose like skimming of the dead animal, cutting their flesh, etc. And there's the most important here. There about a kind of tools such as spear thrower and ball and arrow come into the beginning. There's an important point here. यहाँ जो हमारे समक्ष क्वेश्चन अगला आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, हमने औजार की बात की, लेकिन हमने देखा नहीं कि उस समय उन्होंने कौन कौन से औजार जो है करना जान चुके थे। तो इसी पे ये क्वेश्चन प्रकाश डालेगा कि सबसे पहले औजार का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। इसमें हमने क्वेश्चन पे डिस्कस पहले भी किया था। आरंभिक मानव द्वारा उपयोग किए गए इन उपकरणों को किस प्रकार वर्गीकृत किया गया। देखिए, औजार है उनको वर्गीकृत करना काफ़ी सरल और काफ़ी महत्वपूर्ण भी रहता है कि उनको कौन कौन से नाम से जाना गया और किस समय कौन से औजार का ये लोग प्रयोग किया करते थे। तो ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा एग्ज़ाम व्यू से, और एग्ज़ाम व्यू से सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण ही हैं, इसको हमें छोड़ नहीं सकते। कहते हैं औजारों का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति थे ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने औजारों का उपयोग करना शुरू किया, और ये कहते हैं आरंभिक मानव में सबसे प्रथम मानव थे जिन्होंने जो है औजारों का उपयोग करना भली भांति जाना। और वो कौन थे? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। देखा जाए तो लगभग 25,000 साल पहले हमें जानवरों के शिकार के तरीकों में उल्लेखनीय सुधार के प्रमाण मिले, और ये बात साबित करते हैं कि इनके औजार काफ़ी विस्तृत थे, समझ वाले थे और ज़रूरी भी थे। इस घटना से यह स्पष्ट हो गया कि जानवरों का शिकार करने के लिए एक विशेष प्रकार के भाले का उपयोग किया जाता था। तो आप समझ गए, जब भाले का उपयोग किया गया तो भाले को बनाने की पद्धति भी कुछ विशेष रहा होगा, और ये सब हमें प्रमाण मिले। कहते हैं जब तक साक्ष्य नहीं मिलता है, कहते हैं कोई भी बात को जो है एनालाइज करना संभव नहीं होता है, क्योंकि साक्ष्य के अंतर्गत ही यहाँ पर जो है हिस्ट्री चलती है। तभी जो हमें साक्ष्य मिली शिकार करने का और भाला दिखा तो हमने इसको जो है अनुमान लगा लिया। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये होता है, उठता भी और आपके मन में होगा कि इसको किस किस नामों से वर्गीकृत किया गया। चलिए देखें कि इन उपकरणों को किस रूप में वर्गीकृत किया गया। देखा जाए तो आरंभिक मनुष्य द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरणों के 3 प्रकार में यहाँ पर वर्गीकृत किया गया, जो काफ़ी महत्वपूर्ण था। यानी आरंभिक जो मनुष्य द्वारा जो उपकरण उपयोग करते थे उनको 3 भागों में यहाँ विभक्त किया गया है। उन पर निम्नलिखित शीर्षकों का अंतर्गत देखो चर्चा की गई है। सबसे पहले हाथ कुल्हाड़ी का उन्होंने उपयोग करना सीखा। अब हाथ कुल्हाड़ी थी क्या? देखा जाए तो इनका उपयोग वो चपटा मारने के लिए किया करता था, और शुरू में इन्हें बिना जो है हैंडल के इस्तेमाल किया जाता था। यानी देखा जाए तो कुल्हाड़ी का उपयोग पहले बिना हैंडल का उपयोग किया जाता था, लेकिन बाद में इसमें लकड़ी का हैंडल लगाने जाने लग गया और इसका अधिक बलपूर्वक प्रयोग करना संभव हो गया। क्योंकि जब पहले सिंपल कुल्हाड़ी होती थी उसका उपयोग करना बहुत ही मुश्किल होता था बिना हैंडल के, लेकिन जब उन्होंने हैंडल इसमें उपयोग करना शुरू कर दिया तो ये काफ़ी जो है मजबूत और जो है काफ़ी से फोर्स लगने लग गया। तो पहला तो उन्होंने हाथ कुल्हाड़ी का उपयोग किया, जो काफ़ी महत्वपूर्ण था। उसके बाद कॉपर का इन्होंने इस्तेमाल किया, यानी तांबे का उन्होंने उपयोग किया। ये केवल एक दिशा में तेज धार वाले भारी पत्थरों से बने होते थे चॉपर। ठीक है, चॉपर जो थी काफ़ी महत्वपूर्ण थी, और चॉपर के अंतर्गत देखा जाए तो वे काफ़ी तेज़ भारी पत्थरों से बनाए जाते थे, और इसके लिए जो है चकमक पत्थर का बखूबी प्रयोग करना वो जानते थे, क्योंकि चकमक पत्थर काफ़ी भारी भी होता है और काफ़ी तीखा भी होता है। इसलिए उन्होंने चॉपर का उपयोग करना उन्होंने समझा।
और उन्हें उसके वो मांस काटने के लिए उपयोग किए जाते थे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। और ये अनुमान है, ये मांस काटने के लिए उपयोग करते थे चॉपर का, और ये काफ़ी हमें साक्ष्य भी मिली है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है प्रतदार उपकरण। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं इसका उपयोग बारीक कार्य के लिए चाकू और खुरदुरी के रूप में किया जाता था। और मनुष्य के आरंभिक इतिहास के हजारों वर्षों में हमें केवल कच्चे पत्थर के औजार ही अवशेष मिले हैं। यानी हजारों वर्षों में हमें सिर्फ केवल कच्चे पत्थरों के ही औजार मिले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कहते हैं प्रतदार उपकरण जो थे चाकू और खुरदरे रूप में प्रयोग होता था। और इन उपकरणों की कुछ विशेषता थी। ये उपकरण अक्सर नदियों के छठ के किनारे या झोपड़ियाँ या गुफाओं में पड़े पाए जाते हैं। कहते हैं जहाँ आरंभिक मनुष्य रहा करते थे और मनुष्य जो है जंगली जानवर की तलाश में घूमते थे। यानी ये उपकरण जो हमें मिले हैं वो छतों के किनारों मिले हैं या झोपड़ियों या गुफाओं में पड़े मिले हैं। और ये आरंभिक मनुष्य जो है जंगली जानवरों के तलाश में ये घुमा करते थे और इन्हीं औजारों का उपयोग भलीभांति करते थे। उसके द्वारा बनाए गए उपकरण कई उद्देश्य को पूरा करते थे, जैसे मृत जानवरों की निकालना, उनका मांस काटना आदि। काफ़ी महत्वपूर्ण ये उपकरण थे जो आदि मनुष्य बखूबी प्रयोग किया करते थे और ज़रूरी भी था। कहते हैं लगभग 25 साल पहले भाला फेंकने वाला और धनुष और तीर जैसे नई प्रकार के उपकरण अस्तित्व में आए। तो 35 साल पहले ये काफ़ी महत्वपूर्ण थे, जहाँ पर भाला फेंकने, धनुष और तीर जैसे कई प्रकार के उपकरण जो है साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत हुआ। देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर टॉपिक था जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया। अगर आपको ये बात समझ में आई, अच्छा लगा, अगर आप दिल से त्रिपाठी सेंटर की मदद करना चाहते हो तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। और शेयर करने कुछ नहीं करना है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप एड्रेस पे लगा देना है। पहली बार वीडियो देख रहे थे, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो जरना सी बात है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मोबाइल में सेव कीजिए।